کہ جہاں سے نکلے پھر وہیں پر چلے گئے۔ آمین۔ ہمارا مضمون کیا ہے جی؟ جہاں سے نکلے پھر وہیں پر چلے گئے، یعنی کہ جہاں سے خدا نے نکالا پھر وہیں پر جو ہے وہ چلے گئے۔ کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے کلام خدا میں سے میرے ساتھ نکالیے یوحنا رسول کی معرفت خداوند یسوع المسیح کی انجیل۔ یہ وہ واقعہ ہے جو خداوند یسوع المسیح کے جی اٹھنے کے بعد کا واقعہ ہے، کہ جب خداوند یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جی سب نے نکال لیا جی؟ اس کے 21ویں باب کی آیت مبارکہ ہم دیکھیں گے، تیسری آیت سے پڑھیں گے، بلکہ پہلی آیت سے پڑھ دیں گے۔ یہ پورا ایک پیسج ہے۔ پیچھے والے بھائیوں کو آواز آ رہی؟ خدا برکت دے۔ 21ویں باب کی پہلی آیت سے ہی پڑھیں گے تاکہ ہمیں یہ پیسج سمجھ آ جائے۔ یہ سب نے نکال لیا؟ کلام خدا میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا، اور اس طرح ظاہر کیا شمعون پطرس اور توما جو تمام کہلاتا ہے، اور نتنیل جو کانا گلیل کا تھا، اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا، میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا، اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ بس یسوع نے ان سے کہا، بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ سن رہے آپ توجہ کے ساتھ؟ اس نے ان سے کہا، کشتی کی داہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے۔ کس نے کہا جی؟ کیا کہا؟ کن کو کہا؟ ہاللیلویہ۔ آپ کی توجہ اس کا مطلب، بس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے۔ اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، یعنی کہ یہ یوحنا رسول کی بات، جہاں پر بھی بائبل مقدس میں یہ ذکر آئے کہ جس سے خدا یسوع مسیح محبت رکھتے، اس کا مطلب یوحنا رسول ہے۔ اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا پطرس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے۔ بس شمعون پطرس نے یہ سن کر کہ خداوند ہے کرتا کمر سے باندھا، کیونکہ ننگا تھا، اور جھیل میں کود پڑا۔ اور باقی شاگرد چھوٹی کشتیوں پر سوار مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے، کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے، بلکہ تخمیناً 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی۔ اور یہ انتظام کس نے کیا؟ یسوع نے ان سے کہا، جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ۔ آگے لکھا ہے، شمعون پطرس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا، مگر باوجود مچھلیوں کی کثرت کے جال نہ پھٹا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا ذرا ہم سبوں کے لیے بار سے برکت ہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہ وہ واقعہ ہے جب خداوند یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ آمین۔ اور خداوند یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد مختلف لوگوں پر اور اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے ہیں۔ اب میرے عزیزو، اس واقعہ میں 2 معجزے پائے جاتے ہیں۔ سبھی میری طرف دیکھیں گے بھائی، سبھی میری طرف دیکھیں گے۔ اس واقعہ میں کتنے معجزے پائے جاتے ہیں؟ 2
दो मौजज़े पाए जाते हैं। सबसे पहला मौजज़ा ये है कि शागिर्द जो है उन्होंने क्या हमने सीखा, तिलावत की कि सारी रात क्या पकड़ी, मछली पकड़ी, लेकिन कुछ हाथ ना लगा। आप अगर मछेरों की बस्तियों में, क्योंकि मुझे जो है वो इत्तेफाक हुआ बैरून मुल्क में भी कि मछेरों की बस्तियों में जाने का, आप कराची में चले जाएं तो जो मछेरों की बस्तियां होती हैं वो रात के वक्त मछेरे जो है वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, दिन के वक्त जो है वो मछेरे उनके घरों में, उनकी बस्तियों में खामोशी होती है, क्योंकि मछली का शिकार रात के वक्त ही होता है। लेकिन मौजज़ा ये है कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों को दिन के वक्त 153 बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ कर दी। हालेलुया। ये मौजज़ा है कि शागिर्द जो है वो मछेरे हैं, शागिर्द जो है वो मछली पकड़ने के माहिर एक्सपर्ट है, लेकिन सारी रात जाल डाला, कुछ हाथ ना लगा, और खुदावंद यीशु अल मसीह ने दिन के वक्त शागिर्दों के लिए इंतजाम किया और 153 बड़ी मछलियां शागिर्दों ने पकड़ी। हालेलुया। ये मौजज़ा है कि दिन के वक्त खुदा ने उनके लिए इंतजाम किया। इसमें एक और मौजज़ा पाया जाता है, इसमें एक और मौजज़ा है, माएँ सुन रही है जी, इसमें एक और मौजज़ा है, दूसरा मौजज़ा वो ये कि 153 मछलियों के सबब से लिखा है कि शमौन जो है उसने जाल खींचा, लेकिन मछलियों की कसरत के सबब से जाल ना फटा। हालेलुया। जहाँ पर यीशु होता है वहाँ पर बरकत होती है, वहाँ पर हमारे जाल नहीं फटते। हालेलुया। जहाँ पर यीशु है वहाँ पर बरकत ही बरकत है, मछलियों की कसरत है, लेकिन जाल नहीं फटा। ये दूसरा मौजज़ा है, जहाँ पर यीशु होता है वहाँ पर मेरे अजीजों अजीब काम होते हैं। हालेलुया। जहाँ पर खुदावंद यीशु अल मसीह होता है मेरे अजीजों, वहाँ पर तौक़ुआत से हटकर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैरानकुन काम होते हैं। हालेलुया। ये दूसरा मौजज़ा। लेकिन मेरे अजीजों यहाँ पर हमारा मजमून है कि जहाँ से निकले वहीं पर फिर चले गए। अब यहाँ पर मेरे अजीजों खुदावंद यीशु अल मसीह ने इस झील तिब्रियास की झील में से खुदावंद यीशु अल मसीह ने इनको निकाला और अपने शागिर्द बनाया, लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह के जी उठने के बाद ये फिर से कहां पर चले गए हैं, जहां से निकाला वहीं पर चले गए। अब मेरे अजीजों अब देखें कि जो खुदावंद यीशु अल मसीह जब मसलूब हो रहे हैं, एक तरफ खुदावंद यीशु अल मसीह मसलूब हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो तोमा का ईमान मसलूब हो रहा है। आमीन। समझ रहे इस बात को? एक तरफ खुदावंद यीशु अल मसीह मसलूब हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो तोमा का ईमान मसलूब हो रहा है, और वो शकी शख्स था और वो शक करता था। और कलामे खुदा में लिखा है कि शक करने वाला शख्स जो है वो समुंदर की लहर की मानद है, वो ये ना समझे कि वो खुदा से कुछ हासिल करने का। वो कहता है दिखा मुझे जख्म दिखा। वो एक पाद साहब आए मुझे मिले, कहते पाद साहब मेरी तबीयत थोड़ी ना तो मैं रसूल वर्गी मैं शक्की बंदा वा, मैं जिंदे तक तस्दीक ना कर ला तो उनके तक मैं नहीं मान लिया। तो मैं कहा नहीं है मैनू नहीं तुहाडी गल जिहड़ी ना तू बरकत मिली तुहाडी गल सुन के। ठीक है जी। मैं मैनू तुहाडी गल सुन के मैं सोचा है कि मैं मैनू नहीं बरकत मिली है, अपनी गल बड़ी बढ़ा के की कि मैं जी तोमा वर्गू शकी वा जिंदे तक मैं तस्दीक ना कर ला तो उनके तक मैं नहीं मान लिया। मैंने कहा जी मुझे इस बात से बरकत नहीं मिली। हालांकि शक करने वाला किसकी मानद है? समुद्र की लहर की मानद है। वो ये ना समझे कि मैं खुदा से कुछ हासिल करूं। मेरे अजीजों यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह, अब सब जरा तवज्जो कर लें, खुदावंद यीशु अल मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद मुख्तलिफ वाक़यात में, मुख्तलिफ टाइम में, मुख्तलिफ जगहों पर अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए। हालेलुया। आइए हवाला भी देख लेंगे, इमाम की किताब उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत मुबारक। यहाँ पर क्या लिखा है? आगे ही एक सफ़ा आगे कर ले, इमाम की किताब निकल आएगी। यहाँ पर क्या लिखा है? तीसरी आयत मुबारका में लिखा है उसने दुख सहने के बाद
बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। आमीन आमीन। कितने 40 दिनों तक खुदा की यीशु को नजर आता रहा सबूतों के साथ। मेरे अजीजों, याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने जहां से निकाला था शागिर्द वहीं पर लौट गए और पतरस ने कहा होगा, आओ दोस्तों हम चलते हैं उसी जगह पर और उसी किनारे पर, उसी झील पर जहां पर हम पहले काम करते थे, जहां पर हम मछलियां पकड़ते थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तो हमें कभी कभी नजर आता है। आओ दोस्तों हम वहीं पर चलते हैं, अपना पुराना पेशा इख्तियार करते हैं, जो काम हम पहले करते रहे हैं, आओ हम जाकर फिर से मछलियां पकड़ते हैं, क्योंकि मालिक तो हमें कभी कभी नजर आता है। यही हाल आज के ईमानदार का है कि जरा सी मुसीबत आ गई, जरा सी परेशानी आ गई, घबरा गए, खिदमत छोड़ दी और फिर से उसी जिंदगी में वापस चले गए जहां से खुदा ने निकाला था। याद रखिए मेरे अजीजों, जरा सी परेशानी आ गई, जरा सी मुसीबत आ गई और मेरे अजीजों, गोपाल साहब बता रहे थे कि किसी ने सेमिनरी की और उसने कबाड़ की दुकान बना ली। वो शेयर कर रहे थे, कह रहे पाद साहब इन्हें भी सेमिनरी की थी, ये भी बेचारा खुदा का खादिम। तो पाद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि खुदा का खादिम कभी बेचारा नहीं होता। हालेलुया। खुदा का खादिम कभी बेचारा नहीं होता। खुदा का खादिम जो है मेरे अजीजों, वो किंग तो नहीं होता, लेकिन वो किंग मेकर होता। हालेलुया। खुदा का खादिम बादशाह तो नहीं होता, लेकिन वो बादशाहों को बनाता है। हालेलुया। शैमुल नबी वो किंग तो नहीं था, लेकिन वो किंग बनाता था। हालेलुया। खुदा ने कहा कि जाकर साउल को मसा कर, खुदा ने कहा जाकर सैमुअल, जाकर दाऊद को मसा कर। हालेलुया। सो हम देख रहे थे कि जहां से उनको निकाला फिर से वो वहीं पर वापस आ गए, जहां से खुदा ने उनको निकाला और मेरे अजीजों फिर वो वहीं पर वापस आ गए। उन्होंने कहा आओ हम चले और जाल डाला, लेकिन कुछ हाथ ना लगा। और मेरे अजीजों, ये तिब्रियास की झील है, ये वही झील है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस तू भी पानी पर चल। हालेलुया। ये सेम झील है, तिब्रियास की झील और मेरे अजीजों गलील की झील, या फिर ये सेम है, एक ही नाम है, तिब्रियास की झील। अब ये वही झील है जहां पर पतरस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को देखते हुए पानी पर चला, लेकिन मेरे अजीजों खुदा ने यहीं से पतरस को जो है वो अपनी खिदमत के लिए चुना और ये फिर उसी शोभा में वापस आ गया। याद रखिए मेरे अजीजों, अफसोस हालात से बेबस होकर पतरस जो है वो फिर से माहीगीर बन गया, फिर से वापस आ गया, फिर से उसी जगह पर आ गया जहां से खुदा ने उसको निकाला था। आज मेरे अजीजों, लोगों का यही हाल है कि खुदा ने उनको गुनाह से निकाला है, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, उन्होंने तौबा कर ली है, लेकिन वो बार बार उसी जगह पर जाते हैं, उन्हीं रविशों को अपनाते हैं जहां से खुदा ने उनको निकाला था। पतरस का भी यही हाल था, शागिर्दों का भी यही हाल था। खुदा ने उनको जिस जगह से निकाला था वो उसी जगह पर फिर लौट गए। वो कहते आओ हम चले और मछलियां पकड़े। खुदा ने कहा कि मैं तुमको माहीगीर से आदमगीर बनाऊंगा। खुदा ने जहां से उनको निकाला वो फिर से वहीं पर चले गए। खुदा ने उनको आदमगीर बनाया, वो फिर से माहीगीर बन गए। याद रखें मेरे अजीजों, खुदा ने पतरस को चुना, शागिर्दों को चुना। सुनिए तवज्जो के साथ, पतरस के हाथ में पहले मौत होती थी। और मौत कैसे कि पतरस रसूल जो है वो एक जिंदा मछली को पानी से पकड़ता और वो मछली पतरस के हाथ में आकर मुर्दा हो जाती। पतरस के हाथ में मौत थी। पतरस माहीगीर था और
जैसे ही वो पानी में हाथ डालता और पानी में से जिंदा मछली को पकड़ता, जैसे ही वो जिंदा मछली पतरस के हाथ में आती वो मुर्दा हो जाती। पतरस के हाथ में मौत थी, लेकिन खुदा ने कहा आज के बाद तू माहीगीर नहीं बल्कि आदमगीर है। पहले तेरे हाथ में मौत है, अब मैं तेरे हाथ में जिंदगी दे दूंगा। वही पतरस जो एक जिंदा मछली को पकड़ता वो मुर्दा हो जाती, खुदा ने उसे आदमगीर बना दिया और वही पतरस जो है वो मुर्दा लोगों को यीशु के पास ले आता और वो जिंदगी पाते। हालेलुया। खुदा ने कहा कि तेरे हाथ में मौत है, मैं तेरे हाथ में जिंदगी दे दूंगा, तू मुर्दा लोगों को मेरे पास लेकर आएगा और वो जिंदगी पाएंगे। लेकिन शागिर्दों ने क्या किया कि जहां से खुदा ने उनको निकाला फिर से वहीं पर चले गए। मेरे अजीजों, वही पतरस खुदा ने जब वो ईमान ले आया, जब वो समझ गया, तो मेरे अजीजों हुआ क्या कि उसने जब कलाम सुनाया, रूहुल कुद्स को हासिल कर लिया। लिखा है कि 3000 लोगों ने तौबा की और बपतिस्मा लिया। और मेरे अजीजों, हमें रूहुल कुद्स की जरूरत है। जब रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी खिदमत फलदार और मौसर हो जाती है। आमीन। अब यहां पर मेरे अजीजों याद रखें, अब ये जो पतरस और शागिर्द है, जरा तवज्जो करें, पतरस और शागिर्द है, बाकी सारे शागिर्द ये मछलियां पकड़ने के एक्सपर्ट हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और ये वहीं पर वापस चले गए हैं जहां से खुदा ने इनको निकाला है। अब इन्होंने सारी रात जाल डाला लेकिन कुछ हाथ ना लगा। अब जब सारी रात जाल डाला कुछ हाथ ना लगा तो खुदावंद यीशु मसीह वहां पर आ गया और सुबह के वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि दाहिनी तरफ जाल डालो। अब वही मछलियां, सुने तवज्जो के साथ, वही मछलियां जो सारी रात शागिर्द उनके पीछे पीछे भागते रहे, जाल डालते रहे, मछलियां जाल से दूर भागती रही, लेकिन वही मछलियां खुदा के हुक्म से खुदा ने कहा कि जाल दाहिनी तरफ डालो। और मेरा ईमान है कि मछलियां भाग भाग कर खुद जाल में दाखिल होती होगी, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि हमारे खुदा का हुक्म है कि हमने जाल में जाना है। वो खुद मछलियां भाग भाग कर जाल में दाखिल होना शुरू हो गई। हालेलुया। जोरदार तालियों से नाम को मिला। मछलियां खुदा का हुक्म मानती हैं ते असी खुदा का हुक्म नहीं मानते। मेरे साथ मेरा नाल जी, मछलियां खुदा का हुक्म मानती हैं लेकिन हम खुदा का हुक्म नहीं मानते। मछलियां जान गई, मछलियां अपने खालिक को जानती लेकिन हम अपने खालिक को नहीं जानते। मेरे अजीजों याद रखें, शागिर्द वो है कि जो मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ रहे। शागिर्द वो है जो 3.5 साल तक मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहे और शागिर्द कोई जॉब नहीं करते थे और खुदा इनकी हर एक जरूरत को पूरा करता था। और शागिर्द जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ थे, एक दिन भी शागिर्द खाली पेट नहीं सोए, खुदा इनकी हर जरूरत को पूरा करता था। और शागिर्दों ने खुदा के साथ रहकर भी मेरे अजीजों खुदा ने जहां से निकाला ये वहीं पर फिर से चले गए। मेरे अजीजों याद रखें, ये खुदा के साथ रहकर भी इन्हें समझ न आई और जहां से खुदा ने इनको निकाला ये फिर से वहीं पर चले गए। जरा सी मुसीबत है। आज लोगों का हाल यही है। लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, लोग बड़े बड़े जो है वो खुदा के हुजूर दावे करते हैं, लेकिन जैसे ही मुसीबत आई, बीमारी आई और बहरान आया, मुखालफत आई, घबरा गए, सर पर हाथ रख लिए और डर गए और फिर से वहीं पर चले गए जहां से खुदा ने निकाला। मेरे अजीजों याद रखें। और मेरे अजीजों अब खुदा जब ये खाली हाथ आ रहे तो खुदा ने कहा कि जाल कहां पर डालो, दाहिनी तरफ जाल डालो। अब जब ये मछलियां पकड़कर लाए हैं, सुनिए बड़ी बाबरकत बात, जब ये मछलियां पकड़कर लाए हैं तो खुदा ने पहले से ही इनके लिए खाने का इंतजाम किया था। हालेलुया। कोयले पर भुनी हुई मछलियां और रोटियां खुदा ने पहले ही अपने शागिर्दों के लिए इंतजाम किया।
बड़ी बड़ी मछलियां खुदा ने अपने शागिर्दों को दी, 153 बड़ी बड़ी मछलियां। आज भी खुदा आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करना चाहता है। आज भी खुदा आपको बड़ी बड़ी मछलियों से, बड़ी बड़ी बरकत से सैर करना चाहता है, बशर्ते कि आप उसका हुक्म मानें। इस कोटेशन के साथ आगे बढ़ेंगे कि मौजज़ा खुदा करता है, लेकिन मौजज़ा करने के लिए खुदा आपसे कुछ कहता है। मेरे साथ है जी। इस फिक्रा को फिर से मैं दोहराऊंगा कि मौजज़ा खुदा करता है, लेकिन मौजज़ा करने के लिए वो आपसे कुछ कहता है। आमीन। फिर से दोहराऊंगा, मेरे ख्याल में जब आमीन सारी जमात की आवाज आएगी फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप इस फिक्रे को अंडरस्टैंड कर गए। मौजज़ा कौन करता है? खुदा करता है, लेकिन मौजज़ा करने के लिए खुदा आपसे कुछ कहता है। आमीन। काने गलील की शादी में खुदा ने पानी किसने भरा? खुदा ने। किसने भरा? मौजज़ा किसने किया? सभी जरा तवज्जो, माए जो है उनकी तवज्जो नहीं। मौजज़ा किसने किया? पानी किसने भरा? मौजज़ा खुदा करता है, लेकिन मौजज़ा करने के लिए खुदा आपसे कुछ कहता है। आमीन। और मेरे अजीजों, मौजज़ा खुदा ने किया, लेकिन पानी जो है वहां पर खादमों ने भरा। और मैं अक्सर ये कहता हूँ, ये खुदा की कलाम की बात है कि जिस पर यीशु की निगाह हो जाती है उसकी रंगत जायका तब्दील हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु अल मसीह ने पानी को देखा, पानी ने खुदावंद यीशु अल मसीह को देखा, और पानी की रंगत तब्दील हो गई, पानी का जायका तब्दील हो गया, क्योंकि उस पानी पर नजरे करम, उस पानी पर नजर खुदावंद यीशु अल मसीह की पड़ी। हालेलुया। अक्सर मुझे बड़ी ये बाबरकत बात लगी खुदावंद की पाक कलाम में से कि हमें निजात हमारे अच्छे मालों की वजह से नहीं मिली। हालेलुया। इफिसस कलीसिया के नाम पालूस रसूल के खत आप पढ़ सकते हैं। हमें निजात हमारे अच्छे अमालों से। आज लोग बड़े बड़े अच्छे अमाल करते हैं, देखे देते हैं, शुक्रगुजारी देते हैं और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो यीशु को कबूल नहीं करते। निजात खुदावंद यीशु अल मसीह की नजर करम से, कि जिस पर उसकी नजर करम हो जाए खुदावंद जो है वो उसे निजात दे देता है। अगर अच्छे माल करते रहे तो दूसरे अध्याय भी बड़े अच्छे माल करते हैं, लेकिन अच्छे माल के साथ साथ जो जरूरी बात, अव्वल बात यह है कि यीशु का जिंदगी में होना जरूर है। हमने असल में जो है वो अक्सर हमें जो है वो टीचिंग गलत दी गई है। कलाम खुदा की ये टीचिंग नहीं है। हम कहते हैं कि पहले हम अच्छे अमाल करें, जिन्हें हाल मैं वापस मेरी तैयार नहीं। असी एक कहते हैं पहले हम अच्छे अमाल करेंगे फिर हम बपतिस्मा लेंगे। हालांकि बाइबल मुकद्दस की बात नहीं। बाइबल मुकद्दस ये कहती है पहले आप बपतिस्मा लें, खुदा का पाक को आप खुद ही रास्तबाजी पर गामजन कर दें। आमीन। मेरे साथ है जी। बाइबल का असूल ये है, इंसानी असूल ये है, वो कहता है कोई नहीं पहले मैं अच्छे काम करांगा फिर बपतिस्मा लवांगा, लेकिन बाइबल का असूल ये है कि पहले आप बपतिस्मा लें फिर खुदा जो है वो आपको रास्तबाजी की राह पर गामजन करें। आमीन। सो मेरे अजीजों, फिर से दोहराऊंगा, मौजज़ा खुदा करता है, लेकिन मौजज़ा करने के लिए वो आपसे कुछ कहता है। आप देख रहे लाजर की कब्र पर मौजज़ा किसने किया? हालेलुया। मौजज़ा किसने किया? पत्थर किसने हटाया? लोगों ने। ठीक है, वेरी गुड। शागिर्द भी लोगों ने। हालेलुया। मौजज़ा किसने किया? यीशु ने, खुदा ने। लेकिन पत्थर किसने हटाया? मौजज़ा खुदा करता है, लेकिन मौजज़ा करने के लिए वो आपसे कुछ कहता है। आमीन। जो खुदावंद यीशु अल मसीह 4 दिन के लाजर मुर्दा को जिंदा कर सकता है, वो पत्थर भी हटा सकता है, लेकिन जो खुदा का काम है वो खुदा करता है, जो आपका काम है वो आपको करने को कहता है। आमीन। आप अपना काम करें, खुदा को अपना काम करें। मौजज़ा खुदा करता है, लेकिन मौजज़ा करने के लिए वो आपसे कुछ कहता है। आज मेरे अजीजों, ये पत्थर हमने खुद हटाने, यहां पर जो सीखने वाली बात
ये पत्थर हमने खुद हटाने हैं। कई बार खुदा आपकी जिंदगी में आपको बरकत देना चाह रहा है, आपको मेरे अजीजों बहाल करना चाह रहा है, लेकिन जिंदगी में पत्थर है। खुदा कहता है इन पत्थरों को हटाओ, मैं बरकत गुजारूंगा। मौजा खुदा करता है, लेकिन मौजा करने के लिए वो आपसे कुछ कहता है। अब देख ले मेरे अजीजों के 5 रोटी और 2 मछलियां, वो खुदा जो बियाबान से मन बरसा सकता है, क्या वही खुदा इन 5000 लोगों को खाना नहीं खिला सकता था? खिला सकता था ना? लेकिन मौजा कौन करता है? लेकिन वो मौजा करने के लिए आपसे कुछ कहता है। उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? हालेलुया। तुम्हारे पास क्या है? किसी ने ढूंढा तो देखा कि एक बच्चे के पास क्या मिली? 5 रोटियां और 2 मछलियां। मौजा खुदा करता है, लेकिन मौजा करने के लिए वो आपसे कुछ कहता है। देख ले मेरे अजीजों, जो अंधा बर्तिमाई था, खुदा ने उसकी बिनाई वापस कर दी और क्या कहा? जाकर शलोक में धो ले। हालेलुया। जाकर शलोक में धो ले। खुदा ने उसे शिफा दे दी। आज भी मेरे अजीजों इसी वाक्य को हम देखें कि यहाँ पर 153 बड़ी मछलियां किसने पकड़ कर दी? खुदा यीशु मसीह ने। मौजा खुदा यीशु मसीह ने किया, लेकिन खुदा मौजा करने के लिए आपसे कुछ कहता है। खुदा ने कहा कि जाल कहां पर डालो? दाहिनी तरफ जाल डालो। हालेलुया। कहां पर जाल डालो? दाहिनी तरफ जाल डालो। खुदा ने बड़ा काम किया। आज मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि आप जो है वो बड़े बड़े आपकी जिंदगियों में खुदावंद काम करना चाहता है। खुदावंद आपको बड़ी बड़ी बरकत से मामूल करना चाहता है। खुदावंद आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े मौजे करना चाहता है, बशर्ते कि मौजा खुदावंद करता है, लेकिन मौजा करने के लिए वो आपसे कुछ कहता है। मेरे अजीजों, याद रखें कि शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह ने जहां से निकाला वो फिर से वहीं पर लौट गए। मेरे अजीजों, याद रखें, शागिर्दों ने बड़े बड़े काम होते देखे। शागिर्दों ने मुर्दे जिंदा होते हुए देखे। शागिर्दों ने कोड़ियों को पाक साफ होते हुए देखा। शागिर्दों ने जो है वो नापाक बड़ी बड़ी बदरूहों को यीशु के इख्तियार से निकलता हुआ देखा। शागिर्द जो है वो जब तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहे, खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों की तमाम तर ज़रूरियात को पूरा किया। शागिर्द जब तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे, वो एक दिन भी खाली पेट ना सोए। तो अब तो खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो वो क्यों कर हमारी जरूरियात को पूरा ना करेगा? खुदावंद क्यों कर हमारा ख्याल ना करेगा? लेकिन शागिर्द क्या किया? जहां से खुदा ने उनको निकाला वो फिर से वहीं पर चले। याद रखें मेरे अजीजों, आपका मुस्तकबिल माजी में नहीं है, आपका मुस्तकबिल आगे है। आपका मुस्तकबिल सामने वाले गांव में है। खुदा यीशु मसीह ने कहा सामने वाले गांव में जाओ, वहां पर एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। ये नहीं कहा कि पीछे कितने गांव गुजरे। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि सामने वाले गांव में जाओ, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल सामने है। तो जहां से खुदा ने हमें निकाला है, हम फिर से वहां पर ना जाए। आमीन। कई लोग कहते हैं मैं पहले अपने खुदा बड़े अपने जलाल इस्तेमाल कर। खुदा आज भी आपको अपने जलाल को इस्तेमाल करना चाहता है। पहले लोग कहते हैं जी मैं तो नौजवान हूं ना, से मैं बड़ी बाइबल पढ़ना सा। खुदा चाहता है आप आज भी बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। कई लोग कहते हैं मैं तो पहले बड़ी बड़ी दुआ करना सा। खुदा चाहता है आप आज भी वैसे ही दुआ करें। कई लोग कहते हैं कि जब हम जो है वो चर्च में होते थे, हम बड़े बड़े गीत गाते थे। खुदा चाहता है आप आज भी वैसे ही खुदा की हम दो सना करें। जहां से खुदा ने आपको निकाला है, फिर से वहां पर ना जाए। आमीन। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत बख्शे।